One second. Okay, so in the last lecture we have started with the condition statements. ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट्स में तीन तरह की स्टेटमेंट होती है, इफ और उसके बाद स्विच और टर्नरी. सो इफ इज कंप्लीटेड, इफ में फिर अलग अलग टाइप्स थे, इफ था, उसके बाद था इफ एल्स विद नेस्टेड इफ, एल्स इफ, है ना. सो ऑल टाइप्स ऑफ इफ वी हैव टेकन. आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स in the assignments also. Then let's now start with the next type of conditional statement, and that is switch statement. So I told you one thing. See, nested if else, जहां पर भी nested if else आता है, logically we can implement the same thing with this switch statement. तो ये अब कैसा होता है कि this actually is a this depends on programmer to programmer. You are more comfortable in what. आप nested if भी ले सकते हो और switch भी ले सकते हो technically. अब ये कैसा है कि अभी आपने if else तो पढ़ ही लिया है ना. You also know with some of the program, with like kind of this type of program, we also have understood about nested if conditions. Okay, if this conditions equals to true, this statement is going to be executed. But if this particular condition fails, so there is one more condition to be get evaluated. So after this condition, first it will check for this condition. The runtime engine, the compiler will check for this condition. This is condition number 1, I could say. If it is satisfied, then it's okay. This is going to be executed. Otherwise, if it fails, this block will not be executed. Rather, the condition over here, else if, that is going to be checked. So here is like, if this condition, this is condition number 1, I could say this is condition number 2, and then this is condition number 3, and then this is condition number 4, and something like that. So whenever we have, multiple conditions in the same program, and that needs to be get evaluated, whenever we have multiple conditions in the program, and that needs to be get evaluated. कि जब भी प्रोग्राम में ऐसी नेसेसिटी आपको नजर आ रही है थोड़ी बहुत, कि जहां आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीपल कंडीशन है जो हमें चेक कर लेनी चाहिए, बिफोर बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी विल बी एग्जीक्यूटिंग ईदर दिस ब्लॉक या फिर दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना. तो कौन सा प्रिसाइसली एग्जीक्यूट होगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन विच इज गोइंग टू बी गेट सेटिस्फाइड. तो इस तरह का ये जो बिजनेस लॉजिक होता है, जहाँ पे एक कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरा, ये नहीं हुआ तो तीसरा, ये नहीं हुआ तो चौथा, ये नहीं हुआ तो पांचवा, छठवा, एंड दिस गोज ऑन. else if, else if, else if, else if, else if, something like that. So that kind of scenario where multiple conditions are needs to be get evaluated, and any one of them, any one of them, इनमें से कोई एक ही satisfied होने वाला है. If this condition satisfy, this logic will be get executed. Else it will check for this condition. If it is satisfied, then this logic is going to get executed. Else if this condition satisfy, if both of them fails, this will check. If this satisfy, this is going to be executed. If this is not, मतलब if all three has been failed, this is going to be get evaluated, right? या फिर यहाँ पे सबसे आखिरी में एक else part है, else becomes the default part. अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ, and if none of them actually satisfied, ठीक है, तो I could say now this is the default block, right? ये हो जाता है आपका default block which is going to get executed. तो यहाँ पर एक चीज तो मुझे श्योर समझ में आ रही है, जो आप लोग भी ऑब्जर्व करो, कि देयर कुड बी मल्टीपल कंडीशंस ओवर हियर, बट ओनली वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी गेट सेटिस्फाइड. कोई तो भी एक ही सेटिस्फाइड होगी, या फिर ये डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. So whenever this is, this is the scenario of programming, whenever there are multiple conditions, and this is, this is very certain that only one is going to be, out of these all multiple conditions, only one will be going to be satisfied. Whenever this is very certain, जब ये पक्की बात हो कि यहाँ पे 10 conditions हैं एग्जाम्पल के तौर पे, there are 10 conditions over here, and out of 10 condition ये बिल्कुल श्योर है कि इनमें से एक ही कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड होने वाली है, और उसके हिसाब से एक ही ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, बाकी सारी 9 कंडीशन श्योर शॉर्ट फेल होने वाली है. तो ऐसी सूरतों में यू कुड प्लान विथ इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, इस टाइप से. एंड द सेकंड वे टू डू दैट इज टू स्विच स्टेटमेंट. तो पहले ये सिमिलैरिटी को समझो, मतलब हमें ये कल्चर के देखो, हमने ये भी पढ़ लिया स्विच स्टेटमेंट, फिर हमने ये भी पढ़ रखा है इफ, एल्स, एल्स इफ, है ना, बट हमें एग्जैक्टली यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन से टूल को कहाँ पे यूज करना है. तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए ना. सो बेसिक इसीलिए मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ आप सभी को,
कि आप लोग जानो कि जैसा इस तरह का जैसे भी लॉजिक नजर आता है, जहाँ मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और कोई एक का ही सेटिस्फाई होना है उसमें, और फिर जो भी सेटिस्फाई होगी है ना, बाकी सारी फेल हो जाएंगी। मान के चलिए 100 कंडीशंस हैं, 100 में से 99 फॉर श्योर फेल होने वाली, कोई एक ही कंडीशन है जो पास होने वाली है, उसके हिसाब से एक ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, बाकी सारे नहीं होने वाले। तो अब आप इसको चाहो तो इफ एल्सिफ 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 करके फिर आखिरी में एक डिफॉल्ट ब्लॉक के साथ में इसको ये लॉजिक बना सकते हो। और दूसरा तरीका है इसका स्विच स्टेटमेंट। दोनों काम एक ही जैसे करते हैं। अब ये कैसा है, आपने ऊपर वाला तो आपने देख लिया है, अब आप स्विच स्टेटमेंट देखिए और आपको दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है। कि देखिए जो एग्जांपल्स अगर वाकई में अगर तुम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए होंगे ना, तो तुमको आसानी जाने वाली है। मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम के दौरान मैंने कहा था प्रोबेबली इस तरह का कोई तो भी एक प्रोग्राम रहेगा, इस तरह का या इस तरह का, जो मैं स्विच स्टेटमेंट से बना के दूंगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर बताया था आपको कि मल्टीपल चॉइसेस जहाँ पे होती हैं, मल्टीपल चॉइसेस जहाँ होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस जहाँ होती हैं, उसको वी कुड इजीली इम्प्लीमेंट दैट विद द स्विच स्टेटमेंट। एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट से उसे इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान जाता है। लेकिन ये फिर भी ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप दोनों की प्रैक्टिस करो, और फिर आपको लॉजिकली आपको कौन सा ज्यादा क्लियर लग रहा है आपके माइंडसेट के हिसाब से, आप उसको ही इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। अब ये मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि स्विच स्टेटमेंट ज्यादा इम्प्लीमेंटेड है, ज्यादा सही है ऐसे मौकों पर जहां पर हमें नजर आ रहा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होने वाली है, कोई एक ही सही होने वाली है, ट्रू होने वाली है, बाकी सारी फॉल्स होने वाली है। तो मुझे मेरे हिसाब से ना स्विच स्टेटमेंट ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। लेकिन फिर ये फैसला मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ कि आप खुद ही इसको ट्राई करो और देखो फिर क्या करना है। ठीक है। आओ, तो यहाँ कैसा है, इसका सिंटैक्स कहता है स्विच, स्विच के बाद में एक और कीवर्ड है ऑन। सिर्फ स्विच नहीं है, सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में सिर्फ स्विच होता था, बट यहाँ पे अपेक्स में ना स्विच ऑन, दो चीजें। स्विच ऑन या तो वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो इट विल गोइंग टू कंपेयर विद उसके वैल्यूज के साथ में। व्हेन वैल्यू 1, तो ये दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। व्हेन इज आल्सो कीवर्ड है ना, वैल्यू 2 तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। व्हेन 3, व्हेन 4, व्हेन नल, और व्हेन एल्स, जो मैंने कहा ना डिफॉल्ट ब्लॉक एक आखिरी में एल्स वाला, तो व्हेन एल्स, तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल वैसा ही है ऊपर वाला, जैसे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका इफ स्टेटमेंट। इफ दिस ट्रूज, ओके फाइन, इफ दिस डजंट ट्रू, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज अ गुड फॉर्मेट फॉर प्रोग्रामिंग। तो इसके ऊपर अपन देखते हैं कोई एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, चलो दिस इज द एग्जांपल। पहले प्रोग्राम देख लो आप। लेट मी कॉपी द होल प्रोग्राम, टाइपिंग एफर्ट्स बच जाते हैं मेरे। आई होप यू वोंट माइंड दिस, मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा तो ज्यादा प्रोग्रामिंग ले सकता हूँ, ज्यादा टॉपिक्स ले सकता हूँ। बेसिक प्रोग्राम से तो आई होप यू वोंट माइंड दिस कि मैं अगर इसको टाइप करने के बजाय कॉपी पेस्ट करता हूँ तो। ठीक है। हाँ देखो, व्हाट इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम। जैसे अगर कोई बंदा वीक डेज एंटर करता है, समवन एंटर्स द वीक डेज, जो कि 1 से लेके 7 तक ही हो सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो इट शुड बी, जब भी कोई 1 एंटर करता है तो इट शुड, हमारा प्रोग्राम शुड केपेबल टू प्रिंट मंडे। अगर कोई 2 एंटर करता है तो ट्यूसडे, 3 एंटर करता है तो वेडनेसडे। तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंटर द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 7, है ना। We are about to enter the values from 1 to 7. 1 to 7 क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन वन इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम रखा वीकडेज नंबर। आप कुछ भी दे सकते हो, सिंपल। ये जो वीकडे नंबर, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब दोनों के बीच में स्पेस तो हो नहीं सकता यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू एन एरर। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते हम। तो हमने इसको एक नाम दिया है वीकडे नंबर के नाम से, और जिसकी वैल्यू फिलहाल मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ। तो अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट पढ़ा अभी, जो हमने देखा अभी फॉर्मेट, कि स्विच कैसा होता है, स्विच ऑन। स्विच का जो फॉर्मेट होता है, स्विच लिखा जाता है स्विच ऑन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको देना पड़ता है, सॉरी ब्रैकेट डायरेक्टली आपको देना पड़ता है या तो वेरिएबल नेम या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हमने क्या किया है बेसिकली, व्हाट वी हैव डन, कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है इंटीजर, और जिसका नाम रखा है वीक डे नंबर। तो मैं किस पे स्विच करवा रहा हूँ, स्विच ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल वीक डे नंबर्स पे। नाउ व्हेन इट इज 1, उसके बाद में स्विच जब आप ओपन करते हो तो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा। ठीक है, एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद में व्हेन इट इज 1, इफ इट इज 1, ठीक है, इफ इट इज 1 यू नीड टू प्रिंट के, फिर एक ब्लॉक सिस्टम डॉट डी ब्लॉक, 1 मतलब मंडे, व्हेन इट इज 2 ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम 1 to 7, अब इंटीजर तो कुछ भी, कोई भी, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो। व्हेन समवन ट्राइज लेस देन 1 या फिर बियॉन्ड 7,
तो हमको एक मैसेज देना है कि इनवैलिड वीकडे नंबर, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड वीकडे नंबर, इनवैलिड वीकडे नंबर, प्लीज एंटर द नंबर्स बिटवीन 1 to 7. दिस इज व्हाट द मैसेज. तो एल्स मतलब क्या होता है कि 1 to 7 के अलावा चाहे कोई भी वैल्यू दो, आप बिलो 1 दो या अबव 7 दो, तो वो किस में आ जाएंगी, व्हेन एल्स, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल वैल्यूज, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 से व्यतिरिक्त, इसके अलावा, apart from these values, from the range of 1 to 7, which if someone tries to enter a value, then we will we will complete this logic into when else के अंदर. ठीक है. Let's now and try to run this program and see what's the output. So click on this open log and then execute. So your request has been sent to the server. It's compiling and is going to give us this this response. So to see the output, let's click on this debug only. So because I have entered 1, it's showing me Monday. What if I enters, probably 7? Let me now try to execute the program. So 7 is what? 7 is Sunday. What happens if I try to update? What happens if I try to enter 17, something like that, beyond the range from 1 to 7? If I try with any other number, so it's going to give me this message: invalid weekday number, please enter the number between 1 to 7. So this was your switch statement. कि whenever we have multiple conditions to be get evaluated, वही चीज जो यहाँ पर आपने पढ़ी, else if वाला जो part है, so it's always better to go with switch statement. ठीक है, switch statement. तो now I have few more programs over. जैसे ये एक program था, जैसे ये एक program है कि if someone tries to enter the month name 1 से लेके 12 तक, there will be 12 options. There will be 12 options over here. तो आप जो है 1 to 12 है तो 1 है तो जनवरी, 2 है तो फेब्रुवरी, इन लाइक 12th है तो दिसंबर, एंड एनी अदर नंबर बिलो 1 और ग्रेटर देन 12 विल बी व्हाट, इनवैलिड. ठीक है, एक तो ये है. सो एक तो ये अप्रोच हो गया जो कि बहुत ही सिंपल है. ऑब्वियसली देयर इज वन मोर सिंटैक्स इन द स्विच स्टेटमेंट, और जो कि C++ में नहीं था या किसी और प्रोग्रामिंग सी वगैरह में नहीं होता है, अपेक्स में इंक्लूडेड है. कैसे है? whenever we wanted कि एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमने बनाया है कि जैसे कि 1000 से लेके 3000 तक, 1000 से लेके 3000 तक अगर बिल जनरेट होता है तो 10%, 3001 से लेके 6000 होता है तो 15%, है ना, ऐसा. तो दिस इज व्हाट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज. ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए ये डिस्काउंट देना है. ऐसा एक और प्रोग्राम था अपने पास में. अगर कोई सीजन एंटर करता है तो अगर वो नंबर एंटर करता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, तो आपको प्रिंट करवा के देना है इट्स विंटर सीजन. ठीक है, इट्स विंटर सीजन. अगर नंबर है 5 या फिर नंबर है 6 या फिर 7 और या फिर 8, बिटवीन 5 to 8 इट विल बी व्हाट, समर सीजन. अगर है 8 के बियॉन्ड 9 10 11 12, तो आपको देना है स्प्रिंग सीजन. इसके अलावा मतलब 1 से कम और 12 से ज्यादा है तो इनवैलिड. तो यहाँ पर कैसा है ना कि एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे. मतलब इसका फिर एक दूसरा तरीका है स्विच में कि मतलब इसे अगर 1 है ना, 1 के लिए आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल 1 के लिए विंटर सीजन, विंटर सीजन. 2 के लिए क्या है? 2 के लिए फिर से विंटर सीजन है. 2 के लिए फिर से विंटर सीजन है. 3 के लिए क्या है? फिर से विंटर सीजन है. 4 के लिए क्या है? 4 के लिए आई थिंक, हाँ, 4 के लिए फिर से विंटर सीजन है. ठीक है, 4 के लिए फिर से विंटर सीजन है. और 5 आने के बाद में फिर जो है आप स्टार्ट करोगे समर सीजन. तो बेसिकली ऐसा नहीं करते हैं. फिर जब आपको दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए एक ही आउटपुट है, जैसे 1 to 4 के लिए एक ही आउटपुट है विंटर, 5 to 8 का एक ही आउटपुट है समर, तो फिर उसको निकलने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है स्विच में. तो पहले उसका सिंटैक्स देख लो, फिर आप उसको प्रोग्राम को बना लेते हैं. तो सिंटैक्स नंबर 2, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज है तो सारी वैल्यूज को कॉमा में दो और उसके बाद में स्टेटमेंट लगाओ. तो अब ये जो प्रोग्राम अपन देख रहे हैं, तो यही चीज मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू डू लाइक दैट. तो 1, 2, 3, 4, इन सभी के लिए क्या दूंगा मैं? विंटर सीजन. उसके बाद में इफ इट इज लाइक 5, 6, 7, 8, ठीक है. सो 5, 6, 7, 8 के लिए आप देंगे समर सीजन. समर
season. And then from 9, 10, 11 and 12. Summer के बाद में क्या दिया? Spring. ठीक है, something like this. Now, अब इसके अलावा अगर कोई आता है ना, when else, इसके अलावा कोई आता है, तो what we need to print? We need to say कि यहाँ पे मैसेज है invalid month number. Invalid month number. And please enter the value between 1 to 12. Please enter the values between 1 to 12. ठीक है, 1 to 12 तक ऐसा. तो ये एक और फॉर्मेट ये भी है if else का. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेट. ये भी एक फॉर्मेट है if else का, जहां पर अगर एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए, जैसे एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए एक ही सिंगल आउटपुट देना है, तो आपको उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं. रादर यू कैन क्लब देम इन अ सिंगल वेन के अंदर डाल सकते हो आप उसको. ठीक है, लेट्स नाउ ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस आल्सो. सो रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट टू द सर्वर and we are expecting response. So this is the response what we get. So मैंने क्या नंबर डाला? Okay, I entered 17. I entered 17. That's why. अब ये वीकडे नंबर ही रखा मैंने यहाँ पे. इसको आप चाहे तो और कुछ दे सकते थे. So that's why 17 एंटर करने के बाद में वो गलत बता रहा है. So let me try to enter with 1. ठीक है, अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो let's see what happen. So 1 is what? 1 is winter season. See? ठीक है, आप 2 भी एंटर करोगे ना, 1 से लेके 3 to 4 तक, अगर आप 4 भी एंटर करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट. यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट. यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट. ठीक है, 1 से लेके 4 तक. एंड इफ यू ट्राई विद एनी अदर नंबर, प्रोबेबली 7. ठीक है, लेट्स ट्राई विद दिस 7. सी, समर सीजन. ठीक है. So this is basically, this is basically what is the use of switch statement, और एक और फॉर्मेट जो इसमें था वो. So have a practice on this. यहाँ पे काफी सारे दिए हुए हैं, 2 से 3 एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए. Have a practice on this. So let's start with a new topic and that's iterative statement. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म किया मैंने, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ iterative. Iterative जिसको लूप भी बोला जाता है. Iterative statement या फिर जिसका एक नाम और है, and that's the name is loop. इनको लूप भी बोलते हैं. तो लूप आपने थोड़े बहुत किसी ने अगर पढ़ रखा है सी प्रोग्रामिंग वगैरह पे, तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. ठीक है, सी और सी प्लस प्लस बोलूँ या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज में भी लूप्स यूज होते हैं. अब एक अपेक्स प्रोग्रामिंग में एक एनहांस फॉर लूप करके एक कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एंड मोस्टली मैं एक चीज बताऊं आपको, मोस्टली अपन 2 ही लूप यूज करेंगे, या तो नॉर्मल फॉर लूप या फिर एनहांस फॉर लूप. ज्यादातर जब आप ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करोगे तब आप एनहांस फॉर लूप ही यूज करोगे. उसके अलावा लॉजिकली प्रोग्राम्स में ना हम लोग यूज करने वाले हैं नॉर्मल फॉर लूप. वाइल और डू वाइल है, वाइल और डू वाइल है, पढ़ना भी है, पर ज्यादातर केसेस में ना मतलब 99% तो नहीं यूज होता है. कभी कभार कोई प्रोग्रामर है जो वाइल डू वाइल लगाता है, बाकी जनरली जो होता है 2 ही लूप यूज होते हैं. एक होता है आपका फॉर लूप और दूसरा होता है एनहांस फॉर लूप. एनहांस फॉर लूप तो हमेशा ऑब्जेक्ट जितने भी काम करोगे, अभी आप ऑब्जेक्ट लेवल पे जितना भी काम करोगे, ऑब्जेक्ट्स में रिकॉर्ड फेच करने के लिए एनहांस ही लगता है. और एक होता है नॉर्मल फॉर लूप. वाइल डू वाइल हालांकि पढ़ना है हमको, बिकॉज ये टॉपिक में है, अपेक्स में है, इसलिए. नहीं तो हम ये सोचेंगे कि शायद अपेक्स में 2 ही लूप होते हैं, एक होता है फॉर और दूसरा होता है एनहांस फॉर. तो ऐसा नहीं है बेसिकली. अभी जैसे आपने इफ एल्स भी देखा, तो आपने इफ देखा, फिर आपने इफ और एल्स देखा, फिर आपने एल्स इफ देखा, फिर आपने नेस्टेड इफ एल्स देखा. उसके बाद में फिर हमने देखा कि जहां पे नेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स हो रहे हैं, तो उसका बेटर ये होता है कि आप एक काम करो, उसको स्विच स्टेटमेंट से इंप्लीमेंट कर लो, है ना. तो ये भी चीज है. तो कहाँ पर इफ रखना नॉर्मल वाला और कहाँ पे स्विच लेना, तो वो डिपेंड करता है ना प्रोग्रामर्स टू प्रोग्रामर पे. कोई लोग होते हैं जो फिर स्विच में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इफ एल्स पे ज्यादा कंफर्टेबल ना होते हुए स्विच पे कंफर्टेबल होते हैं. तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सजेशन रहता है वो ये रहता है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना है तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो विद स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, बाकी सब प्रैक्टिस करते आता है धीरे धीरे. मेरी क्या, देखो मैं आपको 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, एक सेशन में 4 प्रोग्राम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा. बट एक चीज अच्छी है, नोट्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट एक प्रोग्राम अगर मैं लेता हूँ तो उसके लिए एक प्रोग्राम और मौजूद है, फिर नया लेता हूँ तो उसके लेता हूँ. यू ऑलमोस्ट हैव फॉर एवरी पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग, for every particular entity you almost have 3 to 4 examples with it. आप सिंसियरली अगर सारे सॉल्व करोगे ना, सारे टाइप करोगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा अपेक्स. अगर आप अपनी प्रैक्टिस में कंची मारते हो तो फिर दिक्कत है.
बिकॉज मैं आपको सामने बिठा के तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ ना, ऑफकोर्स। तो मैं ले ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको समझाते हुए चला जा रहा हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग दिस न्यू टॉपिक, उसके भी फिर कुछ क्वेश्चन, बिकॉज मुझे आगे भी तो पढ़ाना है सिलेबस आपका। बट देन अगर आप प्रैक्टिस में अगर एक एक प्रोग्राम को बाकायदा अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो 101% बोलता हूँ आपको अपेक्स टफ नहीं लगेगा, नहीं तो आप 50-50% में झूलोगे। ठीक है, चलिए। सो हाँ, एक चीज और कि दिस इज द लास्ट वीक फॉर डेमो, ये भी डेमो का लास्ट वीक है, मतलब फ्राइडे को आई एम गोइंग टू एंड दिस डेमो, जितना भी होता है। हाउ सो अब द सेकंड इज लाइक इटरेटिव। इटरेटिव मतलब होता है लूप्स। लूप्स देखा जाए तो चार अलग तरह के लूप्स होते हैं, बट यू नीड टू मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर एंड एनहांस। ठीक है, हम एक बार पढ़ लेंगे वाइल और डू वाइल। वाइल होता है प्री कंडीशन, डू वाइल होता है पोस्ट कंडीशन चेकिंग। वाइल और डू वाइल में फर्क है कि वाइल जो होता है वो प्री कंडीशन चेकिंग टाइप का स्टेटमेंट है, डू वाइल होता है पोस्ट कंडीशन चेकिंग। ठीक है, आओ देखते हैं। सो वाइल में कैसा होता है, वाइल का सिंटैक्स के वाइल के अंदर आपको कंडीशन देना पड़ता है। नाउ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली इज गोइंग टू एंटर इनटू दिस लूप। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब तक कंडीशन, जितनी बार ये कंडीशंस ट्रू होती जाएंगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, और जैसी ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आप इमीडिएटली नीचे आ जाते हो, एंड देन अब यहाँ जो स्टेटमेंट है वो वाली एग्जीक्यूट होती है व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ठीक है, तो जितनी बार, जितनी देर तक कंडीशन ट्रू है, यू विल बी एंटरिंग ओनली ओवर हियर, इसी लूप में घूमते रहोगे। फिर जब कंडीशन फॉल्स होती तभी आप लूप के बाहर आ पाते हो। तो लूप के बाहर इंसान कब आता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, वरना आप लूप में चलते रहोगे। तो यहाँ पे वाइल में कैसा ना, पहले कंडीशन चेक होगी। If condition is true, then only this statement is going to execute it. This block of statement, this whole block of statement, whatever, one line statement, two line, three line, 10 line, multiple lines of statement under this particular block. ये particular block के अंदर जो statement है, they will only be get executing. One second, why ऐसा क्यों दिख रहा है? Oh, that is why. तो कहाँ गया? These conditions will only be get executed. These conditions will only be get executed if the condition is true. तो while में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, बाद में ब्लॉक का एग्जीक्यूशन डिसाइड किया जाता है कि ये एग्जीक्यूट करना है या फिर ये। कंडीशन ट्रू हुई तो ये, कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप के बाहर की चीजें, कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप के अंदर की चीजें, ये ब्लॉक के अंदर। लूप मतलब ये ब्लॉक, ये आपका करली ब्रैकेट्स जो है उसके अंदर, दिस इज ब्लॉक। तो लूप ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसको एग्जीक्यूट करने का है ब्लॉक के अंदर। कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फेल होती है, तो ब्लॉक के बाहर की चीजें। तो यहाँ ना सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, इसीलिए वाइल को बोला जाता है प्री कंडीशन चेक। प्री मतलब पहला होता है, प्री कंडीशन चेकिंग सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अभी जैसे एग्जांपल है, राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू प्रिंट द वेलकम मैसेज। कितनी बार? 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स। ओके, चलो तो एक एक प्रोग्राम बनाते हैं हम इसका, छोटा सा प्रोग्राम। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। तो व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन, मैंने एक काउंटर लिया, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखा, 1। एक काउंटर लिया जिसको इनिशियलाइज किससे किया, 1 से। 1 मतलब इंटीजर, इसलिए उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। नाउ अब व्हाट इन द व्हाइल लूप, व्हाट आई एम क्लिकिंग, आई मीन व्हाट आई एम टाइपिंग ओवर हियर कि काउंटर, कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं, काउंटर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो अभी आप देख सकते हो काउंटर का वैल्यू कितना है, काउंटर का वैल्यू है 1। सो ये कंडीशन ट्रू होती है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 10। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और मैसेज प्रिंट करेगा, वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं ये भी दे देता हूँ, प्लस वैल्यू ऑफ काउंटर। ठीक है, वैल्यू ऑफ द काउंटर, तो ये सेव है, काउंटर का वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद में फिर इमीडिएटली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, काउंटर प्लस प्लस, ये आपका असेंडिंग ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट। इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू बाय 1। तो पहले इसकी वैल्यू थी 1, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो इट विल अगेन गो बैक एंड सी द कंडीशन, फिर से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद में देखेगा 2, वेदर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 2 इज लेस देन 10 वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर अंदर आएगा, फिर से प्रिंट करेगा, वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग, काउंटर की वैल्यू 2। फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर की वैल्यू जाएगी 3, इट विल गो बैक टू हियर। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, चलता रहेगा ऐसे, फाइनल वैल्यू आएगी 10। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 इक्वल्स टू 10 वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो फिर से प्रिंट करेगा, वेलकम टू अपेक्स 10, और फिर काउंटर की वैल्यू जाएगी 11, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा।
ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो अब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट लिख दूँ सबसे आखिरी में, है ना, मतलब जब काउंटर की जो वैल्यू है, काउंटर की जो वैल्यू है जब वो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो गया, इंटेलिजेंस काम क्यों नहीं कर रहा। तो वेलकम टू द अपेक्स प्रोग्रामिंग, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे हम प्लस काउंटर, काउंटर की वैल्यू देख लें कितनी है, तो यहाँ पर आएगा ऑल द बेस्ट 11, इस तरह से। ठीक है, लेट्स नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, सी वेलकम टू अपेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार इसने प्रिंट किया, 10 बार इसने प्रिंट किया, और फिर बाद में आखिरी 11वीं बार क्या लिखा, ऑल द बेस्ट। अभी कैसे लूप क्यों लगते हैं अपने को, मतलब अगर लूप नहीं होता बाय द वे, ठीक है, इफ आई वांटेड टू प्रिंट दिस, यू नो, इफ आई वांटेड टू प्रिंट दिस 10 टाइम, तो अगर ये 10 टाइम लिखना होता मुझको बाय द वे, लूप क्यों लगते हैं वो समझो आप। तो मैं बेसिकली इसको ऐसा लिख रहा होता था, इस तरह से, वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग, यू नो, वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग, मैं एक बार लिखता, फिर मैं इसको 2 बार लिखता, फिर मैं इसको 3 बार लिखता, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इस तरह से, ठीक है, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अगर अगर लूप्स नहीं होते बाय द वे, अगर अगर अपेक्स में कोई तरह का लूप नहीं होता, तो प्रोबेबली आप ये ट्राई कर रहे होते ना, दिस इज व्हाट यू वर डूइंग दैट टाइम, आप इसको ट्राई करते होते थे। एग्जीक्यूटेड हाइलाइटेड, सिर्फ हाइलाइटिंग वाला जो पार्ट है वही एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो आप इस तरह से लिख रहे होते थे इसको। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए, whenever there is an statement and we wanted it to get executed multiple times, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तब बेसिकली हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। तो उसमें है व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर और एनहांस फॉर। ठीक है, अब ये था व्हाइल, ठीक है, ये था व्हाइल। इसी का सेकंड टाइप है डू व्हाइल, ठीक है, इसी का सेकंड टाइप है डू व्हाइल। अब देखो आप इसके हिसाब से ये जो नंबर्स हैं, ये देखो 1 to 100 प्रिंट करो, फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, इवन नंबर्स प्रिंट करो। इवन नंबर जैसे स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, काउंटर की वैल्यू 2, ये पहला इवन नंबर है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 3 नहीं होगा, काउंटर प्लस नहीं करोगे, काउंटर प्लस इक्वल्स टू 2 करोगे, मतलब ये जो वैल्यू उसमें हमेशा 2 ऐड करोगे, तो 2 के बाद 2 यानी 4, फिर 6, फिर 8, ऐसा, ठीक है। आपको ये मैथमेटिकल टेबल बनाना है, तो इसका भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बनाया हुआ है एक्चुअली हालांकि यहाँ पे, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार सब इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं एक एक लॉजिक, एक एक प्रोग्राम, हार्डली इतना समझा पाऊंगा आपको। बाकी ये अच्छी बात है, नोट्स में मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एक एक पॉइंट के ऊपर ना 2 से 3 प्रोग्राम है, सारे टाइप करो, कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, मुझे समझाना है तुमको, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तुम कॉपी पेस्ट मत करो यार, ठीक है। चलो, मैं क्योंकि देखो मैं देख नहीं पाऊंगा तुमको, तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब ये मत सोचो कि तुम ऐसा करोगे तो मुझे कैसे समझेगा, नहीं, मुझे धोखा देने से कोई मतलब नहीं है, तुम ऐसा करोगे तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो यार, फिर, है ना। चलो, डू वाइल समझ लेते हैं, एक सेकेंड। सो डू में कैसा है, सबसे पहले डू लिखना पड़ता है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद वाइल कंडीशन, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो ये पहले जैसे डू में यहाँ पे 10 स्टेटमेंट है, डू लिखने के बाद क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो इस ब्लॉक के अंदर है, वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे फॉर श्योर। उसके बाद कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है, यू नो, इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, यहां से लेके यहां तक ये एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, 1। अब अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ये जो इसके अंदर है वो ट्रू है, तो ये फिर से वापस अंदर जाएगा, अगर कंडीशन है क्या, अगर कंडीशन है ट्रू, ठीक है। तो सेकेंड टाइम मतलब 1 + 1, फिर से एक और बार एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है तो फिर से ऊपर जाएगा, तो ये ब्लॉक पूरा एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। फिर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, तो अब ये ऊपर नहीं जाता, ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे कैसा है, प्री और पोस्ट के बीच में एक फर्क है, जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं, वैसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपन ये लोग, फिर भी इंटरव्यू में पूछते हैं। इंटरव्यू में जब पूछा जाता है आपको वाइल और डू वाइल के बीच का फर्क, तो पहला डिफरेंस क्या बताना है आपको, वाइल और डू वाइल के बीच में जो पहला डिफरेंस ये है कि वाइल जो होता है वो प्री कंडीशन चेकिंग होता है,
कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक ऑफ, मतलब ये जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, यू नो, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो इस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, मतलब इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये पूरा जो ब्लॉक है इसका एग्जीक्यूट होना या ना होना, ये सब कुछ निर्भर करता है कंडीशन पे। यहाँ कंडीशन पहले चेक होती है, प्री कंडीशन। अब और डू वाइल के ऊपर, डू वाइल कैसे अलग है इससे, डू वाइल पोस्ट कंडीशन है। डू वाइल में क्या होता है, अब देखो डू वाइल में कैसा होता है, जैसे ही प्रोग्राम इटरेशन में आएगा एक बार तो सबसे पहले ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार एटलीस्ट, ये फॉर श्योर है कि एक बार ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके बाद ये फिर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। मान के चलिए कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एटलीस्ट आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये होता है डू का प्रॉमिस कि मैं एक बार तो ऐसे एग्जीक्यूट करवाई, उसके बाद ये होगा फिर से एग्जीक्यूशन इटरेशन में आएगा कि नहीं आएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशन। भाई कंडीशन ट्रू है तो इटरेशन में आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो नीचे चला जाएगा, और उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के बीच का। डू में एटलीस्ट एक बार आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, जो कि वाइल में नहीं होती है। उसके बाद डू के बाद वाइल, डू के बाद वाइल, और वाइल में क्या आता है, कंडीशंस। ऐसा है ये। तो एक प्रोग्राम देखो यहाँ पे, जैसे कि एक प्रोग्राम है ये वाला, तो एक प्रोग्राम है जिसमें कि हमें प्रिंट करना है नंबर 1 से लेके 100 तक, लेकिन कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम दी 100, मैंने काउंटर की जो वैल्यू रखी है उसको रखा है 100, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डू, डू वेल कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्यों नहीं है, काउंटर की जो वैल्यू वो रखी हमने 100, काउंटर की वैल्यू रखी है 100, ठीक है। उसके बाद स्टार्टमेंट होता है आपका, डू स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब देखो डू में सबसे पहले ये जो ब्लॉक है आपका सिस्टम डॉट डीबग, यू नो, 1 सेकेंड, सिस्टम डॉट डीबग नंबर इक्वल्स टू काउंटर प्लस वैल्यू ऑफ द काउंटर, मतलब पहली बार 100 आ जाएगा, पहली बार क्या प्रिंट होगा 100, उसके बाद काउंटर की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी, तो काउंटर की वैल्यू जो कि स्टार्ट हुई थी 100 से, अब काउंटर की वैल्यू है माइनस माइनस मतलब 99। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, व्हाइल काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, काउंटर की वैल्यू है 99, 99 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू बट एटलीस्ट इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है ना, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये वापस जाएगा लूप के अंदर, वापस जाएगा लूप के अंदर, फिर से लेगा सिस्टम डीबग नंबर इज, अब आ जाएगा नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, नंबर की जो वैल्यू पहले प्रिंट हुई थी 100, ठीक है, बाद में प्रिंट हो जाएगी 99, फिर 99 माइनस 1 98, फिर 98 इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, 1 से लेके 100 तक, ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको मैं 10 तक कर देता हूँ, ठीक है, 10 तक कर देता हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 1, ऐसा आउटपुट देखना थोड़ा सा आसान जाएगा अपने को। तो इस तरह से बेसिकली ये प्रिंट होगा। आओ देखो, देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और लूप एंड हो जाता है। तो ये है आपका वाइल और डू वाइल, ठीक है, एक बार उसको करो। अब तीसरा मैं आज फॉर लूप ले लेता हूँ, बेसिक प्रोग्राम अरेज में कल से स्टार्ट करता हूँ। फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं। एक्चुअली फॉर और वाइल को अगर अपन कंपेयर करें ना, तो एक थोड़ी सी एक चीज और देख लो आप, जैसे वाइल में जब भी हम वाइल या डू वाइल में भी इनफैक्ट जब भी हम वाइल लूप लगाते हैं, तो वाइल लूप में कैसा होता है, सबसे पहला पार्ट है आपका इनिशियलाइजेशन। जैसे आप यहाँ काउंटर ले रहे हो,
काउंटर बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन पे क्या है काउंटर। तो ये जो एंटिटी है आपकी, ये एंटिटी क्या है, दिस इज योर कंडीशन, कंडीशन के अंदर है काउंटर, एक वेरिएबल, ठीक है। तो आपको वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वाइल में सबसे पहला पार्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखूंगा कि ये जो एक्चुअली लिखा आपने सबसे पहले, दिस इज व्हाट इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दिस इज व्हाट इनिशियलाइजेशन, ये हो गया पहला पार्ट। कंडीशन मतलब वाइल लूप यूज जब भी हम करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करना पड़ता है हमको, नंबर वन इज इनिशियलाइजेशन, नंबर वन इज इनिशियलाइजेशन। देन नंबर टू, अगर ये नंबर वन है तो फिर नंबर टू क्या है, तो नंबर टू है आपका कंडीशन चेकिंग, कंडीशन चेक, ठीक है, कंडीशन चेक, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू हो रही कि फॉल्स हो रही वो। और नंबर थ्री उसके बाद में जो है, नंबर थ्री जो उसके बाद में है, ठीक है, वो है काउंटर ऑपरेशन। काउंटर या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है। तो काउंटर को जो भी करना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, मतलब काउंटर प्लस प्लस माइनस लिखते हो, काउंटर या तो इंक्रीमेंट या फिर काउंटर डिक्रीमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज। तो बेसिकली कैसा है कि वाइल लूप के तीन हिस्से होते हैं, वाइल लूप के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन चेक, और तीसरा होता है काउंटर का इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। मोर ओवर ये तीनों अलग अलग लाइंस में होते हैं। ये एक अलग लाइन पे होगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग अलग लाइन पे होगा, और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग लाइन पे होगा। मतलब टेक्निकली अगर आप वाइल लूप लगाते हो तो एटलीस्ट लूप लगाने के लिए ही सही आपको तीन लाइंस लगनी है, तीन अलग अलग लाइंस लगनी है, बराबर है। और डू वाइल भी देख लो आप, अगर आप डू वाइल देखना चाहते हैं तो डू वाइल में भी करीब ऐसा ही है भाई। डू वाइल के जिस प्रोग्राम में देखो, इसमें भी पहले इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद में कंडीशन चेकिंग है, और उसके बाद में काउंटर का इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, जो भी करना है। तो दोनों सूरतों में चाहे आप, एक सेकेंड, चाहे आप वाइल लीजिए या फिर आप डू वाइल लीजिए, दोनों केसेस में लूप लगाने के लिए आपको एटलीस्ट तीन लाइंस लगती हैं, थ्री लाइंस। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की। बार बार देखो, मैंने कहा ना अपेक्स में, अपेक्स कैसा है कि अपेक्स में गवर्नर लिमिट्स हैं, और काफी शुरुआत से हमने देखा कि अपेक्स जब हम सॉल्व करते हैं, सो प्रोग्राम जब भी हम करते हैं तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी टेंडेंसी हो कि आपकी जो कोड क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। कोड क्वालिटी तभी अच्छी होती है जब आप कोडिंग जो है, जब आप कोडिंग को मतलब ऑप्टिमाइज वे से लिखते हो। तो यहाँ पे लूप लगाने के लिए ही सही आपको तीन लाइन लगती है, थ्री सेपरेट लाइंस। और गवर्नर लिमिट कितना है, 1 लाख लाइंस ऑफ द कोड, या फिर 60 लाख कैरेक्टर्स पर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर गवर्नर लिमिट फॉर द अपेक्स। तो अगर मैं वाइल यूज करता हूँ या डू वाइल यूज करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्टिमाइज कोड नहीं बना रहा हूँ। तो इसको इस चीज को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए जो अगला लूप है हमारा, वो है फॉर लूप। फॉर लूप में एक ही लाइन में तीनों पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो भी पार्ट होता है, तीनों एक ही में होता है। जैसे देखो फॉर लूप लगाया मैंने, अब सेम चीज 1 से लेके 10 प्रिंट करने का फॉर लूप। फॉर इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू 1, यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू 1, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद चेक होगा वेदर काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है क्या, ठीक है। तो ये फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हुआ काउंटर की वैल्यू 1 से, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम है काउंटर, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन पार्ट। उसके बाद में सेकंड, ये था फर्स्ट थिंग, ये होता है नंबर 1, ये एग्जीक्यूट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है कंडीशन चेकिंग। तो कंडीशन चेकिंग में चेक होगा कि काउंटर की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 1, वेदर 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो पता चला कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाओगे आप, ठीक है। मतलब ये हो गया नंबर 2। तो नंबर 3, या तो लूप के अंदर जाओगे या लूप के बाहर जाओगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है तो नंबर 3 आप लूप के अंदर आ गए। अगर कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू होती 120, तो 120 लेस देन इक्वल्स टू 10 फॉल्स, तो आप कहाँ जाते, सीधा बाहर आते। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधा यहाँ पर आते, बराबर। तो ये होता नंबर थर्ड ऑपरेशन। अगर फॉल्स हो गए, बाहर चले गए, तो फिर ये नहीं होता है। अगर यहाँ चले गए तो ये नहीं होता है, फिर ये इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगर आप लूप के बाहर, कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन ट्रू है और आप लूप के अंदर आए,
लूप के अंदर आने का मतलब क्या होता है कि आप, ये बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है, तो आप इस बॉडी के अंदर आ चुके हो, आप इस बॉडी के अंदर आ चुके हो, तो फिर जो भी यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। अब आप फिर वापस जाओगे, अब जब वापस जाओगे तो काउंटर प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस, जो भी आपने दे रखा है, प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं। तो ये 1 के फिर क्या होगा 2, 2 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, कंडीशन चेक करेगा 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हाँ 2 इज लेस देन 10, फिर से अंदर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा बाहर, काउंटर प्लस प्लस, 2 + 1 3, 3 इज लेस देन 10, ऐसा चलते रहेगा। तो बेसिकली ना फॉर लूप इस तरह से काम करता है। तो फॉर लूप में फायदा क्या होता है, वाइल डू वाइल से भी ये चीज बन सकती है, लेकिन फॉर लूप कैसे ना वन सिंगल लाइन, एक ही लाइन पे पूरा तीनों काम हो जाते हैं आपके, आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब इसी से होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम देख लो उसका। system.debug, ठीक है। सो फॉर इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू 1, उसके बाद काउंटर इज लेस देन 10, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लूप जो लगाया मैंने 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके 10 तक, तो 10 बार, फॉर द 10 टाइम्स इट विल गोइंग टू प्रिंट वेलकम टू अपेक्स प्रोग्रामिंग। और ऐसे ही आउटपुट आपने इसके पहले भी देखा है ना, व्हाइल लूप, फॉर लूप से यही चीज देखा है आपने बेसिकली। तो जो आपने व्हाइल लूप से कर सकते हो सेम, व्हाइल डू व्हाइल से जो कर सकते हो सेम, आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। बट फॉर लूप इज कंसिडर्ड टू बी मोर ऑप्टिमाइज, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि तीनों लूप लगाने के लिए जो 3 लाइंस लगती है वहां पे, यहाँ पर वो तीनों लाइन एक ही लाइन पे आ जाती है, तो 2 लाइन आपकी बच जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फॉर लूप। अब कल से स्टार्ट करता हूँ मैं अरेज का कंसेप्ट, अरेज ले लेता हूँ, तो उसके बाद में फिर मैं अरेज के ऊपर से फिर मैं आपको एडवांस फॉर लूप जो है, एनहांस फॉर लूप, वो इसी पर से बता पाऊंगा। उसके बाद में फिर डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अपेक्स प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ से फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। चलिए, सो कल प्रॉबेबली ये देखो, अगर ये हो जाता है तो आज मंडे है, तो ट्यूसडे ट्यूसडे ऑनवर्ड वगैरह प्रॉबेबली मैं जो है, हाँ ट्यूसडे ऑनवर्ड वगैरह मैं प्रॉबेबली ये स्टार्ट कर पाऊँ, वेडनेसडे ऑनवर्ड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सही, लेकिन प्रैक्टिस करो। चलिए, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।